So hey guys, summer has arrived and the thing that you're seeing in front of me, this ice box, it is from Ice King. If your drinks are turning hot very fast and you cannot keep it cold for longer duration, we have Ice King with us. If you are going out for picnic or any party celebrations where you want to keep your drinks cold and enjoy the moment, Ice King is with you. Stay cool, stay king. Hey guys, welcome to the episode 2 of season 3 for Prolific Sport, and today we have with us straight from East Siang district representing Arunachal Pradesh and Northeast in whole India. The artist we are talking about who's known for her versatility is none other than Mary J. Welcome. Thank you. So Mary J, जगह कैसे लग रहा है? जगह तो कोजी लगा, अच्छा लगा. कोजी लगा, अच्छा लगा. So the place we are in is Yeti Sports Bar. Do visit. They have a really nice environment here. The aesthetic is so cool out here. Do visit. Check it out. We'd like to know that. Did you ever thought that कि आप एक podcast करेगा and you'll talk about hip hop stuff, about your music? And now you are here. Now you are talking about it. We are going to discuss so many things. How do you feel about it? अच्छा. First of all, yes. Yeah, I always had that confidence, I guess, in me. शायद आगे जाएगा. But this is a very good start for me. हमको नहीं लगा था हम लोग का कोई आके approach करेगा ऐसा. I think it's a very good initiative बाकी artists लोग के लिए भी. And yeah, thank you for inviting me first of all. And yeah, और क्या पूछा? And yes, वही आप अच्छा जवाब दिया. And then we also have कि now that you're on this podcast, what do you think the importance of platforms like this, like Prolific Sport or any hip hop creative platforms out there that tries to push out the culture? So what's the importance? Importance तो है because हमारा स्टेट में इतना अच्छा से डेवलप नहीं हुआ है. पूरा इंडिया कर रहा है, बाहर का लोग कर रहा है. एंड आई थिंक एक ऐसा स्टेटस एक अपॉर्चुनिटी देता छोटा आर्टिस्ट को भी, बड़ा आर्टिस्ट को भी हमारा अंदर, एंड बाहर भी देखेगा फिर यहाँ का जो कर रहा. एंड प्रोफेशनली जो करा रहा है आप लोग तो नहीं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं हर चीज़ प्रोफेशनल रखने के लिए. बहुत अच्छा, हमको तो अच्छा लगा. Prolific Sport is pushing it. Yeah. So, okay, we are done with the intro questions. Now let's move on to the questions that are going to be about you. So, how did Marina Jamo turn herself into Mary J? You know what I'm saying? So, सबसे पहला तो I think I was 7 or 8 years old when I first listened to Eminem. Yeah. पापा मम्मी का गाड़ी में था. USB भी नहीं, CD में चल रहा था तब से. CD में भरा के पता नहीं जहाँ तहाँ से भर के आता था. उसमें गलती से 2 गाना हमको सुनाई दिया, I Need a Doctor and Berserk. तो उधर से ही करके हम इंस्पिरेशन, उसमें हमको बहुत अलग साउंड किया बिकॉज पापा और मम्मी तो हिंदी गाना ही सुनता था लोकल, तो ये कुछ और था. हमको अच्छा लगा थोड़ा हम और सुनने का मतलब आपका मम्मी एमिनेम प्ले कर रहा था? हाँ. मतलब कहीं भी दे देता था वो. इसके बाद गाना भर के आता था. Is your mom into hip hop? No, she's not. She is not. ऐसे ही मतलब रैंडम में सब भर के आता था. So yeah, उधर से ही शुरू हुआ सुनना. उसके बाद इतना पता नहीं था, लिखता था स्टोरीज एंड पोएम्स एंड शिट. So 13 years old, I think I really started writing raps, verses and all that. So उसके बाद and you've done it big. People know you now. So
in hip hop में क्या होता है, if we not only hip hop, if we talk about history ना, women representation like हमेशा ऐसे हुआ है कि वो लोग को देर मिला है चीज़. फॉर एग्जाम्पल वोटिंग राइट्स, फ्रीडम, इक्वालिटी, नेम इट. सो इन हिप हॉप ऑल्सो, यू नो, when it was a male dominated genre and then females came, they also claimed it. So now what do you think that this distinction of male and female rapper is being minimized? Basically I'm asking the female representation in hip hop. Yeah, I get it. I think it has been minimized थोड़ा सा by a lot. लेकिन बाहर में हम लोग अंदर नहीं. Even in India, पूरा whole India बोलने से बहुत कम ही है. कितना ना बोल सकते, एड्स ही है. हमको खुद पर्सनली इतना पता नहीं. DMC है और लाइक अच्छा और भी होगा. मेरी जे. No, I'm speaking in genuinely from my. Okay, thank you so much. But yeah, we got Rebel, we got Mega Ophelia. Yeah. And I personally think that you can do it big in future. Thank you so much. So yeah, but वही है, हम लोग का अंदर इतना नहीं है, तो हमको लगता है. और आने से भी ठीक है females in the scene, because हम खुद बोलने से प्राउडली हम नहीं प्राउड तो है, बट ये मेरा वो नहीं बोल रहा, ईगो नहीं बोल रहा. बट कितना साल हो गया हमको भी रैप में आके, बट कंपटीशन नहीं मिला फीमेल में हम. तो आई ऑलवेज सर्च फॉर कंपटीशन इन मेन. तो हमको चाहिए कि वुमेन भी कोई तो थोड़ा हमको भी एक टोन डाउन करो बोल के कोई. सो या नहीं, वही कि इफ अगर एक लड़का रैप करता है, ही से रैप, लड़की रैप करते ही सी से फीमेल रैपर. सो व्हेन दैट वो डिस्टिंक्शन प्लेस करते हैं लोग ना, दैट इज समथिंग, यू नो, वी नीड टू थिंक अबाउट. जो चीज़ हटाना है फ्रॉम दिस कल्चर. So let's move on to this question now. We are going to discuss about this reel that you posted on for Barfare Catalyst. अच्छा. That challenge, and Raftar commented, you know, big achievement. Not just Raftar, Vishal Dadlani. How did you feel? Like, अच्छा रफ्तार का कमेंट है. पहला तो हमको लगा झूठ है बोल के, बिकॉज नोटिफिकेशन चेक किया तो अभी जस्ट रिसेंटली सब लोग खरीद रहा था ना ये वेरीफाइड पैच. तो हमको लगा ऐसे ही कोई रफ्तार का नाम लेंगे, वेरीफाइड वाला है. तो जाके हम प्रोफाइल में टैप किया तो हम देखा अरे तो फिर से हमको फिर से भरोसा नहीं हुआ, नहीं ग्लिच हुआ क्या करके. तो हम फिर दबाया तो वही था. तो हम ओके ऐसा, और तो रिएक्शन नहीं था मेरा, बस वही था दिन. ओके फिर आगे. एंड वो आप स्टोरी में भी पोस्ट किया था. हाँ, स्टोरी में पोस्ट, बार फिर भी पोस्ट किया. यू नो, पीपल वर अप्रिशिएटिंग इट. एंड वो वीडियो तो खतरनाक था. थैंक यू. सो दैट हमको लगता है आप अभी नेशन नोस यू एंड यू कैन डू समथिंग, यू नो, बिग आउट ऑफ दिस स्टेट ना. पीपल दे डू रैप स्टफ, बट वो लोग एक जगह तक सीमित रह जाते हैं. वी वांट आर्टिस्ट टू गो आउटसाइड, यू नो, एंड आई सी दैट पोटेंशियल इन यू. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट the label that you were in, Blue Alpha Products. Am I right? Yeah. So what happened? Like, how you all got into that label? Okay. ऐसा था, Blue Alpha Production भी नया था उन लोग का. I think एक दो ही वीडियो उन लोग भी बनाया हुआ था, and हम लोग भी शोज कर रहा था, एक दो गिग्स मिल रहा था. So there was this gig, I don't remember exactly कौन सा था, but उसमें उन लोग भी प्रेजेंट था. एंड उन लोग मेरे ही कॉलोनी का भैया लोग थे, तो पहचाना हमको. अरे तुम लोग ये सब कर रहा हो? हाँ ठीक है, हम लोग भी ऐसा है. तो हम लोग का साथ एक गाना बना के देखो, अच्छा लगा है बोलने से साइन अ कॉन्ट्रैक्ट. Did they, you know, pay you? No actually. Okay. Yeah, so उन लोगों का भी गलती नहीं है, नया था. बात तो हुआ था पे करेगा, बट पता नहीं हो पाया. So but effort to डाल दिया. हाँ, म्यूजिक वीडियोस एंड
But I think Blue Alpha production is not, you know, specific. It's not a hip hop based label. Yeah. Because I checked their account and it was like some local songs, some Hindi songs. Yeah. There were some hip hop tracks out there. और सबसे ज़्यादा Blood Bangers का. You got around 10 videos on YouTube from Blood Bangers. I checked it out. I think there's 5. Yeah. 5. No, मतलब कुछ है जिसमें आप सब members हैं ना. अच्छा, okay. हाँ, पूरा मिला के. So, yeah, you guys were together, Blood Bangers. Then, why you guys didn't continue? बात तो वही था. जी ताजम के XU सीनियर था हम लोग से, तो कॉलेज खत्म हो गया, जॉब ढूंढना था, उनमें लग गया. वो समय आप कॉलेज में था? नहीं, उन लोग का कॉलेज खत्म होने से पहले. I don't remember कितना था. Who was the youngest in the group? Me. Okay. Yeah. So वही साथ में जितना हो पाया हम लोग किया, but आगे जाके तो लाइफ सीरियस लेना था सबको, एंड म्यूजिक से कुछ हो नहीं रहा था. सीजनल कमाई था, विंटर में ज़्यादा होते ये सब इवेंट्स, तो उसमें मिलता है. ये था. ऐसे तो नहीं है कि लेबल से कुछ तू में हुआ है? नहीं, ऐसा मतलब बीच में तो हुआ है लेबल से भी, खुद का बीच में भी, बट वो नहीं था रीजन. तो कभी आप नहीं सोचा राइट मांगने के लिए कि हम लोग को पे करो बोल के, यू नो, फोर्स बोला? तो हम लोग क्या था, सब ऐसा था मेंबर का, सब मेंबर बहुत शर्म करते हैं पैसा उसा बात करने. तो म्यूजिक वीडियो में तो क्या था, उसमें प्रोफेसर था करके ना, थोड़ा हेल्दी वाला प्रोफेसर था. हाँ, थोड़ा हेल्दी वाला. हाँ, तो हाँ, उसको हम लोग बोलता था कि वो थोड़ा, उसको चुतिया नहीं बोलेगा लेकिन समझ रहे हैं. हाँ. तो उसको हम लोग बोलने देता था, जाओ बोलो ना पैसा कवर है, ऐसा बोल के. तो वो बेचारा ट्राई कर देता है अपना तरफ से, बट वे लोग भी हाँ इधर उधर पैसा निकल गया ऐसा, तो हम लोग भी कुछ नहीं बोल पाता सही करके. आई थिंक ये भी, यू नो, दिस इज अ प्रॉब्लम कि you should pay artists. Yeah. Money is the motivator. Exactly. So let's talk about the cipher, Siang cipher. I'm talking about. Siang cipher बहुत साल पहले हम देखा था Siang cipher. When I started rapping, तब हम ये वीडियो देखा था, and then I was like looking, and only one female rapper. You were there. I'm female rapper use नहीं करेगा. I'm sorry. Only one rapper like. Okay, you were there, and that आप उसमें एक line बोला था. Wait, I wrote it here. I pop your eyes while you smoking a pipe. I eat spinach and make you all that. So if we talk about, मतलब वो समय बोलने से people were doing all basic shit in terms of lyricism, but हम भी वो समय ऐसे था कि I was studying lyricism ना, कि how people they, you know, play with words. मतलब I'm not saying it's a very good bar, but वो समय को ले अगर पकड़ के चलने से, that was something to talk about ना. और that whole cipher I think still now it is underrated because बहुत सही cipher था. Flow was also there. So ये Siang cipher, tell us something about Siang cipher. उसमें था लाले गैंग, हमारा Blood Bangers and T4R का था, बट T4R का बाकी मेंबर्स आ नहीं पाया. तो बात वही था कि साइफर करेगा सियांग का अंदर. तो लाले गैंग सीमियो का थ्रू से हम लोग मिला. उसका बचपन का दोस्त लोग केंजी लीडर है, तो उनसे बात हुआ. फिर जाके फ्लो लोग को मेरा थ्रू से मिला, तो करके हम लोग बात हुआ. बट देन उन लोगों का मेंबर्स लोग कुछ अंदर में कुछ था, आई डोंट नो प्रॉब्लम, सो उन लोग नहीं आ पाया. फ्लो आ दिया. क्या बताऊँ और तो हाँ नहीं. हाउ एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस टू वर्क विद लार्ज ग्रुप. अच्छा, ओके.
आई थिंक मेरे लिए तो नॉर्मल ही था बिकॉज क्रू का ही साथ स्टार्ट किया एंड हमको अपना क्रू जैसे ही लगा बिकॉज सब अपना क्लोज दोस्त जैसे ही था एंड वही अच्छा था. आई थिंक मतलब वो समय में रैपर्स लोग ज़्यादातर मतलब बिकॉज दे वांट टू डू इट फॉर फन और यू नो जस्ट दे वर डूइंग इट, ऐसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ना कि ऐसे कुछ होगा बोल के. अच्छा नहीं हम लोग उसके लिए था उसके लिए एक्सपेक्टेशंस था हम लोग एक्चुअली पार्ट 2 भी बनाएगा बोल के था बट देन वही बात नहीं हो पाया फिर आई डोंट नो. सो ये सियांग साइफर को देख के हमें ऐसा लगा कि देयर आर सो मेनी डोप आर्टिस्ट देयर. सो व्हाट वाज द हिप हॉप सीन इन सियांग बैक देन और एंड डू यू सी इट इवॉल्विंग नाउ यू नो? ओके तब समय तो बहुत कम हम लोग ही था करने वाला. एक दो रैपर्स था और बट उन लोग भी रेगुलर नहीं था, कंटिन्यू नहीं कर रहा था एंड यूजिंग ड्रग्स एंड ऑल दैट. सो मेरा तरफ से भी है रिक्वेस्ट की जो भी रैपर्स है ये जो अभी हिप हॉप चीज़ में घुस रहा, ड्रग्स ये सब लेना ही है, ज़रूरी नहीं है. और एंड जो भी कर रहा है ना उन लोगों को भी दिखाई देता है, अच्छा आर्टिस्ट लोग भी डूब जाते हैं तो मत करो. एंड वही हम बोलेगा बहुत कम था करने वाला. हम लोग भी बहुत ट्राई किया था बैटल ऑफ बार्स, नहीं ऐसा कुछ करके हम लोग बिटर बैटल बार्स ऐसा कुछ करके हम लोग सियांग रैप बैटल सीन था. सियांग नहीं कुछ नहीं था, हम लोग कराया था फर्स्ट टाइम. तो उसमें भी इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं था, 6-7 रैपर्स था एंड अभी भी. सो डिड यू गाइस डू इट? हाँ रैप बैटल करवाया. हाँ इसमें YouTube में एक है पासीघाट रैप बैटल बोल के ढूंढ के देखो. तो वही अभी भी सीन इतना बूमिंग तो नहीं है, बच्चा लोग 1-2 कर रहे हैं अभी. इतना अच्छा है नहीं बोलेगा हम, लेकिन इस नहीं होगा. कुछ रैपर्स जो आपको लगता है कि सियांग से एंड दे आर यू नो डूइंग इट गुड नाउ? सियांग से आई थिंक फ्लो इज गुड. फ्लो पूरा सियांग से ना. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, फ्लो इज गुड. अपर सियांग से हम लोग का केमजी अच्छा है. सिमियो मेरा दोस्त अच्छा कर रहा है. सिमियो म्यूजिक वीडियो में बहुत एग्रेसिव साउंड करता है. इज ही लाइक दैट इन रियल लाइफ? नो थोड़ा रील बनाते रील भी वो सब उसका ही काम है. तो हाँ ये 3 एंड हमको याद नहीं आ रहा अभी बहुत सारे बट होगा अच्छा. ओके अरे मेरा पूरा ब्लड बैंगर्स या हाँ सब मेंबर्स. So now let's talk about your discography. मतलब आपका songs का बारे डिस्कस करेगा. Your latest tracks and the tracks that you put out on YouTube years ago, 5 years ago, 4 years ago. So were you in your experimental phase? जब आप शुरू वीडियोस डाल रहा था YouTube में, because you did it all alone. और ये YouTube में वीडियोस डालना ब्लड बैंगर्स का बात हुआ या पहले से आप डालता? नहीं ब्लड बैंगर्स से बहुत पहले था. ब्लड बैंगर्स से पहले भी मेरा एक ग्रुप था यंग सिंगर्स. हाँ यंग सिंगर्स. सो कैसा शुरू हुआ था म्यूजिक वीडियो वाला सीन इज सिमियो हम दोनों क्लासमेट क्लास 10 में मिला. ऐसा करके हम लोग और एक दोस्त मिला कारबांग. तो उसका स्कूल दूसरा था, हम लोग का स्कूल दूसरा. बंक करके हम लोग उसका स्कूल जाएगा, फिर उसको रुकेगा बाहर में, फिर लिख के बैठेगा. तो हम लोग सोचा कर ही रहे तो म्यूजिक वीडियो ऐसे भी बना लेगा, क्रू रख लेगा ऐसा करके. उसमें फर्स्ट एक म्यूजिक वीडियो बनाया था हेड स्टार्ट करके. तो उधर से शुरू हुआ आई गेस. और नहीं उससे पहले म्यूजिक वीडियो तो नहीं, यूट्यूब में हम ऐसे वीडियोस पोस्ट करता था सेल्फी उसमें रख के. लिरिक्स वीडियो बना के? नहीं लिरिक्स वीडियो भी नहीं, बस अपना शक्ल दिखाएगा और ऐसा. तो ये आप वो वीडियोस डिलीट कर दिया? 1-2 है पुराना. 1-2 ओके. सो आपको क्या जो पुराना गाना है YouTube में लिरिक्स याद है वो सबका?
Yeah. पूरा याद है बोल के तो नहीं, बजाने से वो थोड़ा गा लेते. Some of the songs that you think that ये गाना close to heart. Yeah, Separate Dreams करके एक है. Separate Dreams, okay. इसके बाद Be Proud of Yourself करके. लिरिसिज्म इतना अच्छा है नहीं बोलेगा, but दिल से लिखा है. So let's talk about your versatility and experimentation, because मतलब your main source of medium हमको लगा कि YouTube था to know about your music. So I went through your YouTube, you know, जितना videos देख सकते देखा, and I found out that you were experimenting and putting that versatility, trying to. ये आपका एक गाना है 2023 where you you know where you were inspired from Sakar. Yeah. और आप ट्राई किया उसका जैसे फ्लो करने, because I noticed. Yeah. And I'm very familiar with Sakar song. Yeah. So how did it come, you know, to you? The versatility, experimentation. अच्छा. I don't know, it comes naturally, I guess, because हम सुनता भी ऐसा अलग अलग टाइप का गाना है, and जब हम सुनते हैं हमको लगता है अच्छा ऐसा टाइप का भी बना के देखना चाहिए, and वही हम करते हैं. एक जॉनरा का स्टाइल हम दूसरा जॉनरा में डालने के लिए ट्राई करते हैं. सो या उसमें ही अंदर में खुद से ही हो जाते हैं, हम करेगा बोल के नहीं होता. और ये म्यूजिक बनाने से पहले मतलब आप दूसरा लोग का म्यूजिक सुनते हैं to get inspiration or? Yeah, a lot. So do you listen to like albums? Albums ऐसा बोल के नहीं, हम कभी ध्यान नहीं देते ये एल्बम का ये ट्रैक ऐसा करके, हम बस सुनते हैं अच्छा लगता है. Okay. Like. So ये आपका जो ये नया गाना था Dance Hall. Yeah. I think that was also really very good. Yeah, thank you. How did it come in your mind? कि हम करें और कि Okay. चलो रेगे हो जाए. So okay, हम डेमियन मार्ली भी बहुत सुनते हैं, बॉब मार्ली का बेटा. So उसका हम जब ढूंढ रहा था पुराना गाना ये सब भी, हम बहुत रिसर्च किया, तो उसमें हमको ओल्ड वॉर चैंट करके एक गाना, उससे हम बहुत ओल्ड वॉर चैंट. Okay. So उससे हम बहुत इंस्पायर्ड है इस गाना में. सुनाई भी देगा, एक एडलिप तो हम उसका यूज किया. So yeah, I think रेगे, डांस हॉल ये सब में भी मेरा बहुत इंटरेस्ट है पहले से. So वही ट्राई करने के लिए किया. हमको लगा हमको जमैकन बहुत पसंद है एज अ लैंग्वेज, so हमको सीखने भी मन है, तो हम ट्राई किया वही लिखने के लिए आ गया. And you know मेरा जब रैग्नारोक इवेंट हो रहा था, so हम तो पता था ही आपको पहले से. Then I saw the poster. Okay, Mary J and Simio are performing. So I was like, okay, Mary J is back. So do you think that जब बार फिर आया, it made you know make music again? नहीं, in terms of like वापस एक छोटा सा मोटिवेशन दे. Yeah, हाँ, obviously, because हम बीच में गायब हो गया था, because मेरा अनमोटिवेटेड था, तो कुछ नहीं हो रहा था हमसे. एंड देन अचानक आई थिंक JT कॉल्ड मी. या उसके बाद हमको बोला ऐसा है. फर्स्ट में तो बैटल के लिए कॉल किया था हमको, तो फिर बोला नहीं हो पाएगा, तुम और सिमियो वो कर लो. Did JT pay you? Yeah. Okay. तो या उसमें मोटिवेट तो हुआ, अच्छा लगा आगे भी. एंड ईटानगर में हम कभी नहीं किया था शो, फर्स्ट टाइम था. अच्छा था. हार्डकोर ट्रैक्स और मेलोडिक ट्रैक्स? बोथ, दोनों का समय आता है. And you are also versatile with changing genres. When we talk about hip hop में भी सब genre होते हैं ना. Some are doing old school, कोई trap कर रहा है. So let's talk about this song, and people also want to hear it. You know, the song J featured Greyboy. No, we are just going to talk about music. So
How did it happen? ओके, इसका तो हम ग्रे को बोला कि एक टॉमी ली करके गाना है, पोस्ट मलोन एंड आई फॉरगॉट द नेम, यावे या आई थिंक समथिंग लाइक दैट। तो वो दोनों का गाना है, हम उसको भेजा, अच्छा लगा, ऐसा गाना बनाएगा, तो ये हमको सीधा बीट भेजा ऐसे ही टाइप का। तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड एक बार में बन गया। इट वाज लाइक really natural ऐसा। कोरस कौन बनाया था? Chorus is his Grace, and then जो pre-chorus and shit is nice. That was a real good song. Thank you. So yeah, again the following question is related to this, that people know about you, you know? So if Gray and you two sit together, if artistic perspective, if you two are sitting together and अगर आप दोनों एक गाना बनाना चाह रहे, then how that process comes out? ऐसे बीच में disagreement होता है, musical disagreement, artistic disagreement? Yeah, disagreement करके नहीं, constructive criticism I guess. Okay, constructive criticism. Yeah. तो हम उसको जैसे for example हम एक गाना भेजेगा, I'll tell him write a verse on it. वो हमको भेजेगा, हमको अगर ऐसा टाइप अच्छा नहीं लग रहा, हम सीधा बताएगा हमको नहीं लग रहा अच्छा, नो मतलब कुछ और करो, हम ऐसा सोचा था, तो he works on it. वैसे ही सेम वो हमको बताता है, I work on it. So why some artists are there with so much potential, but they cannot do it professionally. They don't have a good team behind it, and I think that you're lacking that, you know, a good team आपको push कर सकता है बहुत boundaries. So why do you prefer to do it all alone and not have a good team, like, you know, a producer, एक इंसान जो MV संभालेगा? Actually ऐसा नहीं है, नहीं चाहिए, ट्राई तो किया है हम भी ढूंढने का, बट आई हैवंट फाउंड समवन इन माय वेवलेंथ आई गेस। कभी हमको एग्जैक्टली जो चाहिए वो नहीं मिलता है, एंड हमको जब वो नहीं मिलता है आई प्रेफर नॉट टू वर्क विद, सीधा ऐसा गिव अप कर दिया, सरेंडर। सो या हमको खुद इसके अकेला काम करना भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं वीडियो बहुत अच्छा बना लेता है, ऐसा कुछ नहीं, बट अकेला काम करने में फ्रीडम ज़्यादा, स्पेस मिलता है हमको सोचने का, एंड बट वही है वीडियो एंड साउंड के लिए आई नीड पीपल, ऐसा नहीं है, नहीं चाहिए। Also for constructive criticism. So ये I texted you way back on Insta that you should join a label. आप बोला था आप था, but it didn't work out. Yeah. So what I was saying is a pure hip hop label. अच्छा, like for example कलमकार। अच्छा, या अगर नहीं अप्रोच करेगा तो भी आई वुड थिंक ट्वाइस आई गेस, बिकॉज लास्ट टाइम का मेरा अच्छा नहीं था एक्सपीरियंस, एंड बहुत सारा आर्टिस्ट लोग से भी हम सुना अच्छा नहीं है करके, बहुत इवन अच्छा नहीं है मतलब लेबल में घुसना, इट्स बेटर टू बी इंडिपेंडेंट ऐसा। सो या आई थिंक जैसे भी होने से भी हम भी इंडिपेंडेंट ही करेगा। सोनू लेम और वो रेम्बो लॉन्गटेन भी शायद एक लेबल में था, DHH करके। हाँ, that is a pure hip hop label. तो रेम्बो लॉन्गटेन पता नहीं अभी he is stuck to the label or not, but Sono Lim he gave up. Then so now we move on to questions that are related to culture as a whole that we'd like to hear from you. So the first question is, what do you think of hip hop music industry in the state, in AP? The industry. Can it grow? Is it big? You know, how much work does it need more? मेरे लिए अभी तक इंडस्ट्री बोलने लायक तक हुआ ही नहीं है यहाँ, बिकॉज पायनियर्स जो है, जिन लोगों का पास सोर्स है, जिन लोग करा सकते हैं उन लोग करा नहीं रहे कुछ भी, लाइक करा तो रहा है बट
Spell the name out. Don't no say misspell the name out. no so yeah बहुत कुछ करा सकते हैं मेरा ख्याल से but lack कर रहे नहीं बोल रहे ऐसा ट्राई नहीं कर रहे उन लोग भी ट्राई कर रहा अपना बेस्ट भी कर रहा होगा क्या पता बट आई थिंक बहुत कुछ हो सकता है या इंडस्ट्री बोलने के लिए तो अभी हम इतना एक्चुअली हम यहाँ का आर्टिस्ट को कभी सुनता नहीं है तो हम इतना उसमें ओपिनियन नहीं दे सकते आई थिंक जो बारफेयर है बारफेयर इज टेकिंग अरुणाचल यू नो टू अदर स्टेट्स सो आई थिंक अगर यहाँ से भी इफ लेबल्स दे स्टार्ट पेइंग आर्टिस्ट हायरिंग गुड आर्टिस्ट मेक देम यू नो वो लोग के लिए अच्छा प्रोडक्शन कर दे अच्छा एमवी बना दे सो थिंक बहुत म्यूजिक जाएगा बाहर एंड दे विल गेट टू नो मोर अबाउट सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज do you think that hip hop artists in our state can make a living through music? एक्चुअली यस अगर वैसा ही ऑडियंस भी हिप हॉप को प्यार देगा तो बिकॉज म्यूजिक एज अ होल बहुत कमाने वाला चीज़ है बाकी जॉनरा देखो ऋतु रूपा लोग देख लो वो बोलता लोग देख लो उन लोग कमा रहे उन लोग लिविंग बना सकते हम लोग भी हिप हॉप को उतना आगे ले जा सकने से ऑब्वियसली लिविंग बन जाएगा एंड इवन नाउ आई थिंक अरुणाचल का अंदर नहीं बोलेगा बट यहाँ से निकल के बाहर तो कमा सकते हैं हमको तो ये लगता है कि हिप हॉप म्यूजिक एंड ऑल्सो रॉक म्यूजिक इन अरुणाचल ये लोग ये जोनरा में मतलब पीपल बहुत सारा है पार्टिसिपेट करने में बट टू अर्न फ्रॉम इट इज लिटिल हार्ड इट्स हार्ड ऑब्वियसली बट हर चीज तो हार्ड ही होगा ना तभी तो तुम हार्ड चीज से निकल के तुम अगर कुछ कर पा रहे तभी तो तुम अच्छा आर्टिस्ट हो Yeah, we got some motivation here. Let's go. So, do you think that our AP audience, हाँ do you think that Arunachal का audience, वो लोग कल्चर को समझता है कि they are just following trends? बहुत सारा लोग तो ट्रेंड फॉलो कर रहा बिकॉज जब एक आर्टिस्ट हाइप होता है ना हाइप मिल रहा होता है तब सब फॉलो करते हैं सब देखते हैं बट एक दो गाना का बाद हाइप जब डाउन हो जाता है तब देखता कोई नहीं है बस फॉलो करके रखा हुआ होता है मेरा साथ भी वही केस है फॉलोअर्स 6,000 पार होगा व्यूज कितना ना आते हैं सो या बहुत सारा लोग ट्रेंडी फॉलो कर रहा सब लोग नहीं बोलेगा बहुत सारा जेन्युइन भी एंड मतलब ये सेम चीज वो लोग साथ भी होते हैं जो लोग अभी रैप बैटल देख रहे हैं अरुणाचल दे थिंक बारफेयर इज एवरीथिंग बट लाइक हमको भी बहुत टेक्स आते हैं आर यू इंस्पायर फ्रॉम दिस रैपर और अपना अरुणाचल का आर्टिस्ट का ही नाम देते हैं आई एम लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हिप हॉप ग्लोबल है वहाँ से ही आए वॉच URL दे आर सम लाइक टॉप लीग्स रैप बैटल URL देखो बाहर का रैप बैटल देखो ना इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू आवर स्टेट So हमको सच में फील होता है कि people need to understand you know they need to dig deep so one more question I have so many artists are doing good in terms of getting fame and clout you know but are they able to convert it question का मतलब ये है कि people are getting you know they are getting popular but are they able to give their message जो वो लोग बोलना चाहते हैं सच में ना उसको प्लेस कर पा रहे हैं through their music and is the earning happening वो खुद आर्टिस्ट प्रोपोर्शनल चल रहा है क्या वो सब चीज आई थिंक वो आर्टिस्ट खुद ही बोल पाएगा कि वो खुद कन्वे कर पा रहे कि नहीं पा रहे अपना मैसेज बट मेरा ख्याल से तो अभी का जितना आर्टिस्ट हम सुन रहे हैं हमको लगता है नहीं हो रहा वो मैसेज कन्वे इंसानों के पास हमको लगता है उनको यहाँ अरुणाचल में लोकल सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है यू नो लोकल सपोर्ट लाइक पीपल
आपका म्यूजिक नहीं सुनेगा फिर भी सपोर्ट करे. They are like okay अच्छा कर रहे हैं ना. And parents दिल से मेरा बेटा म्यूजिक करते हैं पर they won't listen to music of that kind. So I think local support बहुत ज़्यादा इधर पे ना, but जो practical rational support होते हैं that is less. So yeah, these were some last questions or there are 2 more questions. So this question, ये questions हमको इंस्टा में बहुत मिला था. You know there were so many questions जो हम DM करने के लिए स्टोरी में डाला था. There were some similar questions. So one question जो बहुत कॉमन था वो ये था कि will there this year will there be any projects from you? Album, EP, singles? Singles, Are yes. you working on it also? Yeah, singles, yes, I'm planning on dropping some. Album, I thought of dropping one, but नहीं हो पाएगा. And EP का सोचना पड़ेगा. Album ये money वो demand करते हैं सब ना big projects. Exactly. So आप धीरे धीरे you know you'll gradually do it. Yeah. So yes, we move to our last question. This is from a person on Insta. नाम नहीं लिखा East20p. I don't know what that means. So यहाँ पे question is मतलब ये question अच्छा लगा तो what's a mistake you made that improved your art? क्या गलती की है जो आपका आर्ट को improve कर दे? That's a nice question. ऐसा तो I think making cringe songs. Making cringe songs. No, everybody does that. Wait. What's a mistake I made that made me improve? Mistake तो बहुत सारे है, but the mistake that changed everything. Acha. So does the mistake have to be connected to writing songs, or does it have to be something? Can it be something else? Can be anything. पूछने वाला था वो बताया नहीं ना. अच्छा, ऐसा बोलने से तो आई थिंक हम बोलेगा हम पहले बहुत पीता था तो उस समय हमको लगता था एवरीथिंग आई एम मेकिंग इज वेरी लाइक साउंड्स गुड. तो जब बीच में हम पीना छोड़ के आई गॉट क्लीन एंड आई लिसन टू माई ओल्ड सॉन्ग्स. तो हमको लगा ये तो हम 30 बनाया हुआ है. तो उसके बाद हमको लगा नहीं हमको इधर काम करना चाहिए. मेरा ये लैक कर रहा मेरा वो लैक कर रहा. नहीं आई थिंक एक आर्टिस्ट गुजरता ही ये सब चीज़ से ना. यू नो ये मतलब ये फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते. To write some set that people can relate, you have to go through pain. So yeah, that was the end of the questions. So कैसा लगा? How did you feel? अच्छा था. Talking about culture, music and everything. अच्छा था, मज़ा था हमको तो. अच्छा लगा, मज़ा लगा. And what do you think your life is leading to? Right now, I'm kind of looking for a job to support music. मम्मी पापा पे हमेशा रिलाई नहीं कर सकते. कॉलेज खत्म हो गया. So yeah, हम अभी कुछ ना कुछ कर लेगा. जॉब ही नहीं मिलने से भी anything. You study out of state? Yeah, in Greater Noida. Okay, last question I say that you know being in Arunachal Pradesh, being in your state and moving out, is there a difference to hoga experience mein? I'm talking about music. Is there a huge difference? Because you collaborated with many artists jo log you know not from here. Yeah, there's a difference. I think इतना huge बोल के तो हमको दिखाई नहीं दिया, but हाँ वहाँ पे अच्छा से और वो है फाउंडेशन अच्छा बना हुआ है हम लोग का. लहर साइफर एंड ऑल दैट दिल्ली में लगाते हैं, एंड इवन नोएडा साइफर्स. सो सेट है
अच्छा खासा क्राउड भी आता है एंड लाइक द आर्टिस्ट्स आर वेरी सपोर्टिव है ना. हम लोग का यहाँ में क्या होता है एक दो का कोई एक दूसरा से एनवी ऐसा, वहाँ पे हम इतना दिखाई नहीं दिया. सब जितना भी हो पीठ पीछे क्या बोलता है आई डोंट नो बट आगे सब अच्छा ही है, लाइक सपोर्ट करते हैं. नहीं, बाहर में भी आपको जानने वाला बहुत सारा है. एंड यू आल्सो डिड दिस सॉन्ग विद हाजो आजरी जो कोलैब किया था. Why you're laughing? सही नहीं था कि? I mean नहीं ऐसा नहीं बोल रहा है उसका. नहीं, I think हाजो आजरी is a decent artist. मतलब no decent artist. Okay yeah. उसमें हम कुछ नहीं बोले. But I think that आपका कोलैब you know वही रीजन है कि हम वो म्यूजिक वीडियो चलाएगा, नहीं तो नहीं. So ये the last thing, what message would you like to give to the audience of Arunachal? Nowadays ये podcast पूरा दुनिया जाएगा, global जाएगा. Once this out on YouTube, everybody can see it. I think the message is to support local artists. Artist लोगों बोलेगा give up मत करो इतना जल्दी, टट्टी बनाते रहो, कुछ अच्छा बन जाएगा होगा पता नहीं. And yeah, drugs मत करो. So that was the end of our podcast. We had a very good conversation with Mary J. Thank you all for listening till the last. This is me, Tani Flo, and this is Prolific Sport. Signing out. Let's go.